Good day, students. Now, today we're going to start with our lecture number 22 of our course, Total Quality Management. Now, we were studying in our previous lecture about customer focus and why customer focus is important in the Total Quality Management program. So we're going to continue with that today. Now, when we speak about customer focus, customer-driven firms measure the facts that drive customer satisfaction. So जो firms customer satisfaction को judge करती हैं या उसको measure करती हैं, ठीक है, वो ऐसे factors जो है measure कर रहे होते हैं जिससे customer की complete satisfaction होती है और they are focusing more on what their customers want and what they need. Now, a company close to its customers knows what the customer wants, how the customer uses its products, and anticipates the need that the customer may not even be able to express. So a company close अपने customer से जो करीब होगा company जिससे उनका relation जो है वो ज़्यादा होगा और वो अपने customer की needs जानते होंगे, उनके लिए उनको ये मालूम होना बहुत easy है कि उनको उनके customer जो है उनकी प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ करते हैं और फिर वो एंटिसिपेट करते हैं कि वो किस तरीके से जो है उनको क्या क्या चीज़ों की मज़ीद ज़रूरत हो सकती है या किस टाइप की उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं. Now sometimes maybe वो चीज़ें जो कस्टमर भी डिफाइन नहीं कर पाता या एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो कंपनी जो है जिस अपने कस्टमर पे उसने कंप्लीट फोकस किया हुआ उसको एग्जैक्टली मालूम हो जाता है. Now how do they do that? They do it through marketing. Now it also continually develops new techniques to obtain customer feedback और constantly उनका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो ऐसे फीडबैक के टेक्निक्स नए से नए इजाद करते रहते हैं जिनसे उनको मुसलसल उसकी फीडबैक मिलती रहे. Now, customer opinion surveys and focus groups can help companies understand customer requirements and values. So, customer opinion surveys जो है, ठीक है, and ऐसे focus groups जो हैं, वो companies को help कर सकते हैं समझने में कि customers की क्या requirements है और उनकी क्या values है. So, that plays important role in the factor. So some companies, they require their sales and marketing executives to meet with random group of key customers on a regular basis. और कुछ companies जो है अपने main जो executives हैं sales के और marketing के, उनसे वो expect करते हैं कि वो अपने customers से जो है और ख़ास तौर पे जो key customers हैं, जो important customers हैं, कोई भी random group उनमें से, उनसे वो regular basis पे मिलते रहें ताकि उनको feedback मिलती रहे. Now, other companies bring customers and suppliers into internal product design and development meetings. कई ऐसी companies हैं now जो ऐसे वर्क कर रही होती हैं कि जब उनकी अपनी internal meetings हो रही होती हैं, development meetings हो रही होती हैं, वो उसमें अपने customers और suppliers को भी शामिल कर लेते हैं ताकि वो ओरिजिनल जो प्रोडक्ट डिज़ाइन बन रहा है उसमें भी उनकी ओपिनियन ली जा सके और sometimes they can maybe give some insight towards the development in the design or trying to maybe some changes could be made. So they try to get as much feedback from them as possible. Now a firm also must recognize that internal customers, the recipients of any work output, such as the next department in manufacturing process or the order picker who receives instructions from an order entry clerk, are as important in assuring quality as are external customers who purchase the product. So एक firm जो है उसको ये recognize करना बहुत ज़रूरी है कि उसके जो internal customers हैं वो कौन है, ठीक है, the recipients of any work output और जो work output है उसके recipients उसको receive कौन कर रहा है, such as the next department in a manufacturing process, कोई भी ऐसे जैसे manufacturing department में एक process से गुजर के product जो है वो दूसरे process में जाता है तो then that would be the internal customer of the company. यानी एक department दूसरे department के लिए जो है वो internal customer बन जाएगा. फिर order picker जो receive इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं या एंट्री क्लर्क जो है. सो
They're as important in assuring quality, उतने ही important हैं ये लोग भी quality को assure करने में जितने external customers हैं जो product end पे खरीदते हैं. So internal customers की भी value जो है बहुत है कि they need to maintain quality at such a level, and everybody should pitch in and help in it. Now, failure to meet the needs of internal customers will likely affect external customers. So जो failure है उन needs को meet करने के लिए, ठीक है, इंटरनल कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली जो है ना इट विल लाइकली अफेक्ट द एक्सटर्नल कस्टमर्स, वो एक्सटर्नल कस्टमर्स को ज़रूर अफेक्ट करेगी. Now, employees must view themselves as customers of some employees and suppliers to others. So employees जो है वो कई दफ़ा उनको जो है अपने आप को एज अ कस्टमर व्यू करना पड़ता है, और सम एम्प्लॉइज एंड सप्लायर्स को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को एज अ कस्टमर व्यू करके उस पॉइंट ऑफ व्यू से जज करना पड़ता है उनको उस प्रोडक्ट को. नाउ एम्प्लॉइज हु व्यू देमसेल्व्स एज बोथ कस्टमर्स of and suppliers to their employees understand how their work links to the final product. So जो लोग ये चीज़ इस प्रोसेस में से गुजरते हैं उनको पता होता है कि किस लिंक से काम हो रहा है और फाइनल प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट होगा. Now, after all, the responsibility of any supplier is to understand and meet customer requirements in the most efficient and effective manner possible. So ज़्यादातर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसी भी सप्लायर की वो ये चीज़ समझना है, ये अंडरस्टैंड करना है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से जो है उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है उसने. Now, customer focus maybe extends beyond the consumer and internal relationships. So कई दफ़ा कस्टमर फोकस जो है वो एक्सटेंड कर जाता है बियॉन्ड द कंज्यूमर एंड इंटरनल रिलेशनशिप. सो उनसे ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कस्टमर फोकस का मे बी इंटरनल रिलेशन जो है कंज्यूमर के साथ उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है ना. हाउएवर सोसाइटी रिप्रेजेंट्स एन इम्पोर्टेंट कस्टमर ऑफ बिजनेस. सो मेजर पार्ट तो सोसाइटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है, जो आम लोग हैं वो मेन कस्टमर्स होते हैं बिजनेस के किसी. नाउ अ वर्ल्ड क्लास कंपनी बाय डेफिनेशन इज एन एग्जाम्पलरी कॉर्पोरेट सिटीजन. तो कोई भी वर्ल्ड क्लास कंपनी होगी, ठीक है, वो डेफिनेशन के हिसाब से वो इट इज एन एग्जाम्पलरी कॉर्पोरेट सिटीजन, यानी वो एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में उनका सिटीजन काउंट होगा क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास कंपनी को वो एक तरह से सिटीजन ही उसका कस्टमर है और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. Now, business ethics and public health and safety measures, the concern for the environment and sharing quality-related information in the company, business and geographic communities are required. So, business ethics में जो है वो public health के सेक्टर में अगर आप देख लें एंड सेफ्टी मेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, उनमें एनवायरनमेंट का कंसर्न भी होता है एंड उनके अंदर एक क्वालिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करने की भी एक ख्वाहिश होती है एनी कंपनी, और बिजनेस और जियोग्राफिक कम्युनिटीज़ जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं. सो जब आप कस्टमर फोकस के हिसाब से देखते हैं तो इन एडिशन वी कैन से दैट कंपनी सपोर्ट विद इन रीजनेबल लिमिट्स of its resources of national industry, trade and community activities, and the sharing of non-proprietary quality related information demonstrate far-reaching benefits. So अगर हम एडिशन टू बाकी सारी चीज़ें देखें तो कंपनी सपोर्ट बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, अपने यानी लिमिट विद इन रीजनेबल लिमिट्स ऑफ इट्स रिसोर्सेज, उसकी जितनी रिसोर्सेज हैं, जितनी उसकी पहुंच है, जितनी उसको अवेलेबिलिटी है, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से वो काम कर रहे हैं. नेशनल है, इंडस्ट्री है, ट्रेड है या कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में, और उसकी जो शेयरिंग है
ठीक है, क्वालिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन की वो नॉन प्रोप्राइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह डेमोन्स्ट्रेट्स फॉर फार रीचिंग बेनिफिट्स, इन वो ज़्यादा बेनिफिट्स जो है गेन करना चाह रहे होते हैं, ज़्यादा फ़ायदे हासिल करना चाह रहे हैं ना। कस्टमर्स में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब कस्टमर्स किस टाइप के होते हैं? देयर वन इज़ एन एक्सटर्नल कस्टमर, जो लेट्स से कि हम अगर मैन्युफैक्चरिंग को ही ये मिसाल रखते हैं, सो एक्सटर्नल कस्टमर वो होगा जो प्रोडक्ट आपका परचेस कर रहा है। इंटरनल कस्टमर वो है कि एक डिपार्टमेंट में भी दूसरे डिपार्टमेंट को, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में जो है मैनेजमेंट से लेके जब पैकेजिंग में जाता है, तो पैकेजिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट का कस्टमर होगा। सो इंटरनल कस्टमर आर दोज हु आर लिंक्ड टुगेदर इन an organization and working within an organization. Investor customer, then social or society customer. So फिर social और society customer भी आ जाते हैं। Now when we talk about the process orientation in customer focus, तो इसमें the traditional way of viewing an organization is by surveying the vertical dimension, by keeping an eye on an organization chart. सो ट्रेडिशनल वे हम अगर ऑर्गेनाइज व्यू करना चाह रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं सर्वे के थ्रू, ठीक है। हम उसकी वर्टिकल डायमेंशन को सर्वे कर सकते हैं, एंड बाय कीपिंग एन आई ऑन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे नज़र रखने से भी हम उसको अपने सर्वे कंप्लीट कर सकते हैं। Now however work gets done or fails to get done, so horizontally or cross-functionally, not hierarchically. So hierarchically जो है ना, अगर हम देखें तो वो मे बी काम हो जाता है, मे बी however काम चाहे वो हो या फेल हो जाए होने से, फिर भी क्रॉस फंक्शनली हम देख सकते हैं उसको, या हॉरिजॉन्टली हम उसको जज कर सकते हैं। सो अ प्रोसेस इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज दैट इज इंटेंडेड टू अचीव सम रिजल्ट। प्रोसेस जो है वो एक ऐसी एक्टिविटीज़ का ऐसा हिस्सा है, ठीक है, जो किसी रिजल्ट को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ना अकॉर्डिंग टू AT&T, a process is how work creates value for customers. So AT&T के हिसाब से अगर हम जज करें तो एक प्रोसेस जो है वो ऐसा सिस्टम है जो क्रिएट करता है वैल्यू अपने कस्टमर्स के लिए। Now we typically think of processes in the context of production. So अगर हम नॉर्मली देखें इसको तो हम टिपिकली कह सकते हैं कि वी टिपिकली थिंक ऑफ प्रोसेसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन, के हम प्रोसेसेस को हम प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आमतौर पे जो है ना देखते हैं। सो द कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट फिजिकल फैसिलिटीज़। सो ऐसा कलेक्शन जो है, जो एक्टिविटीज़ का और ऑपरेशंस जो हैं जो इन्वॉल्व हैं इन ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स, ठीक है, या फिजिकल फैसिलिटीज़ को, जिसमें मटेरियल्स, अब फिजिकल फैसिलिटीज़ में जो है मटेरियल्स आ जाते हैं, कैपिटल आ जाता है, इक्विपमेंट आ जाता है, पीपल आ जाते हैं, ठीक है, एंड एनर्जी इनटू आउटपुट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो हम इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वी कैन, इट्स अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ जिसमें जो है फिजिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। सो कॉमन टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस इंक्लूड मशीनिंग, मिक्सिंग, असेंबली, फिलिंग ऑर्डर्स और अप्रूविंग लोन्स। सो अगर हम कॉमन टाइप ऑफ प्रोसेस को जज करते हैं, क्योंकि देखो एक प्रोसेस जो है वो प्रोडक्शन के दौरान बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है। सो अगर हम कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कॉमन टाइप ऑफ प्रोडक्शन जो है उसके अंदर मशीनिंग आ जाएगी, मिक्सिंग आ जाएगी, असेंबली यानी किसी चीज़ को जोड़ना, फिर ऑर्डर्स फिल करना या फिर लोन्स अप्रूव करना, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉमन टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन में आएंगी। Now, however, nearly every major activity within an organization involves a process that crosses traditional organizational boundaries. So, main आप ये देखेंगे कि हर एवरी मेजर एक्टिविटी जो है, कोई भी मेजर एक्टिविटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, वो इन्वॉल्व करती है एक प्रोसेस को जो क्रॉस ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज, जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर देता है। नाउ फॉर एग्जांपल,
an order fulfillment process might involve a salesperson placing the order. So एक एग्जाम्पल के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस जो है वो शायद एक सेल्स पर्सन जो है जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है वो इसको फुलफिल कर सकता है. नाउ अ मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव entering it on the company computer system, a credit check by finance would be. अब marketing representative क्या करता है? Now fulfillment order process जो है वो sales person कर रहा होता है जो order place कर रहा है. फिर marketing representative जो है वो उसको enter कर रहा है कंप्यूटर के डेटा सिस्टम में, या उसको credit check by finance उसको कर रहा है, या he's picking and packaging it and shipping by distribution and logistics personnel. So picking and packaging and then shipping जो है वो distribution और logistic personnel के काम आ जाते हैं. So invoicing by finance and installation of field service engineers, और फिर installation ऐसे engineers की जो field service में जाके काम करेंगे. So when we speak about it generally, a process perspective links all necessary activities together and increases one's understanding of the entire system, rather than focusing on only a small part. So एक process perspective जो है वो लिंक करता है सारे necessary activities को, ठीक है, एक दूसरे के साथ, और ताकि वो increase कर सकें एक दूसरे की understanding को और पूरे system को जो है ना समझ सकें, rather than कि वो सिर्फ एक छोटे से हिस्से या एक part को सिर्फ समझें. Now, many of the greatest opportunities for improving organizational performance lie in the organizational interfaces. So, बहुत सारे ऐसे opportunities हैं, greatest opportunities maybe, जो help करती हैं organizational performance को improve करने में. वो जो है organizational inferences में lie करते हैं, and those spaces between the boxes on an organization chart, और एक organization chart जो बनाया जाता है उसमें जो वो ऐसे स्पेस में ये चीज़ आती है इम्प्रूवमेंट की जगह जहाँ पे जगह उन्होंने बॉक्सेस के बिटवीन में छोड़ा होता है खाली. तो वो ऑर्गेनाइजेशन में उसको फिर वो फिल कर लेते हैं अपनी इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस. Now when we speak about continuous improvement and learning, अब अगर हम जब कहते हैं कि ओवरऑल जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का प्रोग्राम है और इसमें मुसलसल इम्प्रूवमेंट ही होनी चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए ये चीज़. तो जब हम बात करते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और लर्निंग की, so continuous improvement is part of the management of all systems and processes. So continuous improvement management का हिस्सा बन जाता है सारे processes और systems में. Achieving the highest levels of performance requires a well-defined and well-executed approach to continuous improvement and learning. So हाईएस्ट लेवल के जो है परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो बड़ी वेल डिफाइंड और वेल एग्जीक्यूटेड जो है ना अप्रोच होती है, यानी कि बड़े प्रॉपर तरीके से डिसाइडेड अप्रोच जिसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और लर्निंग जो है वो की जा सकती है. Now continuous improvement refers to both incremental and breakthrough improvement. Continuous improvement का मतलब जो है वो दोनों incremental भी होता है और breakthrough improvement भी होता है. Now improvement and learning need to be embedded in the way an organization operates. So improvement और learning जो है वो एक तरह से organization जिस तरह काम कर रहा है उसकी base उसकी roots में embedded होना चाहिए, mixed होना चाहिए. So this means they should be a regular part of daily work and seek to eliminate problems at their source and be driven by opportunities to do better as well as by problems that need to be corrected. So ये एक point out कर रहा है कि जो डेली काम का एक हिस्सा होना चाहिए, रेगुलर पार्ट होना चाहिए उसका, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने का सोर्स होना चाहिए उसमें, एंड उसको जो है इट शुड बी ड्रिवन बाय अपॉर्चुनिटीज टू डू बेटर एज वेल एज by problems that need to be corrected. So सिर्फ problems को correct करना इसका ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो भी daily basis पे होना चाहिए, but ऐसी opportunities भी देखें जो इसमें मज़ीद बेहतर किया जा सकता है किसी काम को.
सिर्फ करेक्शन नहीं बट बेहतर इम्प्रूवमेंट की कोशिश भी लाई जाए. Now when we speak about continuous improvement and learning, अब हम अगर continuous improvement and learning के बारे में बात करते हैं, so improvements may be of several types. So improvements several types की हो सकती हैं. Now one would be enhancing value to the customer through new and improved products and services. So वैल्यू एनहांस करना कस्टमर के लिए, ठीक है, बेहतर सर्विसेज या बेहतर या इम्प्रूव्ड और नए जो है प्रोडक्ट्स लॉन्च करके. फिर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थ्रू बेटर वर्क प्रोसेसेस एंड रिडक्शंस इन एरर्स, डिफेक्ट्स एंड वेस्ट. सो इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी आपकी इम्प्रूव हो, आपके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर होना चाहिए. एंड इन बेहतर वर्क प्रोसेसेस से जो है वो आपके ऑब्वियसली आपके अंदर मिस्टेक्स या खामियां या डिफेक्ट्स या वेस्ट या एरर्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. सो इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड साइकिल टाइम परफॉर्मेंस. सो इससे क्या होगा कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आएगी आपके प्रोडक्ट में या आपके प्रोग्राम में, रिस्पॉन्सिवनेस बेहतर हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, एंड टाइम साइकिल परफॉर्मेंस भी आपकी बेहतर होती है. नाउ व्हेन वी स्पीक अबाउट मूविंग ऑन टू मैनेजमेंट बाय फैक्ट, अब मैनेजमेंट बाय फैक्ट अगर हम जज करते हैं, सो ऑर्गेनाइजेशंस नीड्स परफॉर्मेंस मेजर्स फॉर 3 रीजंस. सो ऑर्गेनाइजेशंस को जो है परफॉर्मेंस मेजर्स जो है ना 3 वजहों के लिए ज़रूरी होता है. यानी हम क्यों कहते हैं कि एक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए और फिर ऑब्वियसली उसको मेजर भी करना होता है. सो टू लीड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसके लिए बहुत ज़रूरी है परफॉर्मेंस मेजर्स, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारा लीड हो. एंड दैट इज़ टू ड्राइव स्ट्रैटेजीज इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज और स्ट्रैटेजीज चेंज होनी चाहिए. फिर टू मैनेज द रिसोर्सेज नीडेड टू ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन बाय evaluating द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन प्लान्स. सो फिर ऐसे रिसोर्सेज मैनेज करना जिसमें ताकि हम इम्प्रूवमेंट के रास्ते पे हम या ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के रास्ते पे चल सकें और हम evaluate कर सकते हैं अपनी इफेक्टिवनेस जो हमने एक्शन प्लान्स किए हैं उनके मुताबिक. And to operate the processes that makes the organization work and continuously improves. और फिर ऐसे प्रोसेसेस जो है बनाना, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन वर्क जो है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है वो लाई जा सके. नाउ डेटा एंड इंफॉर्मेशन सपोर्ट एनालिसिस एट ऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स. सो डेटा और इंफॉर्मेशन सपोर्ट जो है वो एनालिसिस में हेल्प करता है, ठीक है, उनको सपोर्ट करता है वो. सो द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हाउ इट इज डिसिमिनेटेड एंड अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स आर इक्वली वाइटल टू सक्सेस. सो ऑब्वियसली सक्सेस एक ऑर्गेनाइजेशन को हासिल करने के लिए या उस लेवल पे पहुंचने के लिए किस किस्म की इंफॉर्मेशन है और उसको किस तरीके से हमने अलाइन किया है या किस जगह से किस तरीके से उसको हमने ऑर्गेनाइज किया है या बिट बाय बिट यानी स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज किया या फिर हमने उसको किस तरीके से स्प्रेड किया है अपने इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में. वो सारी चीज़ें भी जो है सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं. Now, when we speak that at this work level, data provide real-time information to identify assignable reasons for variation. They determine root causes and take corrective action as needed also. So, इस लेवल पे जो है वो डेटा जो है वो हमें सक्सेस में हेल्प तो करता है और रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक तो हमें देता है, ठीक है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके ऐसे रीजंस जो हैं वेरिएशन जिनसे आ रही हो या फ़र्क जिनसे आ रहा हो, और हम रूट कॉज जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं और फिर हम उसके लिए करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं. So this might require lean communication, a channel consisting of bulletins, computerized quality reports, and digital readouts of part dimensions to provide immediate information on what is happening and how things are progressing. So obviously ये require करता है कि आपकी communication channel जो है
वो कैसा चल रहा है, फिर कि बुलेटिन्स पे कैसे कंसिस्ट कर रहा है, फिर कंप्यूटराइज क्वालिटी रिपोर्ट्स हों उसमें, और डिजिटल रीड आउट्स हो जो ऑफ पार्ट डायमेंशंस जो है ना, टू प्रोवाइड इमीडिएट इन्फॉर्मेशन, ताकि वो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें कि क्या चीज़ें हो रही हैं एंड हाउ थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, और किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है. नाउ एट द प्रोसेस लेवल, operational performance data such as yields, cycle times and productivity measure help manager determine whether they are doing the right job, whether they are using resources effectively and whether they are improving. So इस लेवल पे अगर हम देखते हैं तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो ऐसा डेटा या उस तरह की चीज़ें कलेक्ट करता है जिसमें साइकिल टाइम्स आ जाते हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी मेजर्स हैं जो हेल्प करती हैं मैनेजर को डिटरमिन करने में कि काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा सही, और जो रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली यूज़ किया जा रहा है या नहीं, एंड वेदर दे आर इम्प्रूविंग, और कि उनमें क्या इम्प्रूवमेंट अगर आ रही है या नहीं. तो पूरा जो प्रोसेस लेवल है, ठीक है, उस पे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और डेटा को जज करना, ठीक है, वो ताकि इम्प्रूवमेंट जज की जा सके. सो मैनेजर्स उनको इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, एंड देन ये देखना कि रिसोर्स जो उन्होंने प्रोवाइड किए हैं कंपनी ने अपने वर्कर्स को, क्या वो इफेक्टिवली इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं. Now, information at this level generally is aggregated, for example, daily or weekly scrap reports. ठीक है, अब इंफॉर्मेशन जो है वो जनरली एग्रीगेटेड होती है, ठीक है, मिसाल के तौर पे डेली या वीकली स्क्रैप रिपोर्ट्स की सूरत में. कस्टमर कंप्लेंट डेटा जो है वो ऑब्टेन किया जाता है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, या मंथली सेल्स एंड कॉस्ट फिगर्स जो है वो फैक्स की जाती हैं फील्ड ऑफिसेज से. सो एंड एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, quality and operational performance data from all areas of the firm, along with the relevant financial, market, human resources and supplier data, form the basis for strategic planning and decision making. So जब obviously हम जज करते हैं कि हम क्वालिटी को मेंटेन करना चाह रहे हैं या इम्प्रूवमेंट लेके आना चाह रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो क्वालिटी और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस डेटा जो है वो फर्म के सब एरियाज से कलेक्ट किया जाता है. जैसे कॉस्टिंग फिगर्स जो है वो फील्ड ऑफिस वाले देंगे, कस्टमर की कंप्लेंट्स के डेटा जो है वो कस्टमर सर्विसेज के रिप्रेजेंटेटिव्स वो देंगे, नॉर्मल जो है डेली स्क्रैप और वीकली रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी ऑफिस में. सो उसके अलावा फिर रेलेवेंट फाइनेंशियल जो है वो मार्केट क्या डिमांड कर रही है, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, हायरिंग एंड फायरिंग, फिर सप्लायर डेटा, ये सारी चीज़ें जो हैं एक बेस बनाती हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, जिस पे डिसीजंस करना फिर आसान हो जाता है. नाउ सच इंफॉर्मेशन इज हाईली एग्रीगेटेड एंड obtained from many different sources throughout the organization. तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट भी समझी जाती है, और बहुत डिफरेंट सोर्स के थ्रू जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन से ये इंफॉर्मेशन ली जा सकती है. नाउ अ कंपनी शुड सेलेक्ट performance measure indicators that best represent the factor that lead to improved customer operational and functional financial performance. So एक कंपनी जो है उसको ऐसे परफॉर्मेंस मेजर सेलेक्ट करने चाहिए एंड ऐसे इंडिकेटर सेलेक्ट करने चाहिए जिनसे जो है आप ये फैक्टर्स देख सकते हैं कि बेस्ट रिप्रेजेंट किन फैक्टर्स को किया जा सकता है, और दैट जो इम्प्रूव्ड कस्टमर ऑपरेशनल कस्टमर की तरफ यानी और उनकी परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाती है. Now these typically would include, so ऐसे परफॉर्मेंस मेजर्स जो हैं उनमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट एंड सर्विस परफॉर्मेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो वो आपसे आके आपका प्रोडक्ट लेके जाएगा. प्रोडक्ट एंड सर्विस परफॉर्मेंस के उसकी परफॉर्मेंस इतनी हाई या अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए कि ऑब्वियसली कस्टमर खुश हो. मार्केट असेसमेंट, मार्केट के बारे में असेस करना चाहिए कि मार्केट की क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. कॉम्पिटिटिव कंपैरिजंस, जो आपके कंपटीशन में काम कर रहे हैं उनके साथ कंपेयर करना चाहिए. सप्लायर परफॉर्मेंस, फिर सप्लायर की परफॉर्मेंस जज करनी चाहिए. एम्प्लॉई परफॉर्मेंस, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए.
and cost and financial performance, or cost or financial performance देखनी चाहिए. Now, a comprehensive set of measures and indicators tied to customer and company performance requirements provide a clear basis for aligning all activities of the company with its goals. So एक कॉम्प्रहेंसिव सेट ऑफ मेजर्स जो है ना बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें मे बी हम कह सकते हैं कि इंडिकेटर्स जो है वो एक कस्टमर या कंपनी परफॉर्मेंस के साथ टाई अप होते हैं, ताकि वो रिक्वायरमेंट एक आ सके उसमें, जिसमें एक क्लियर बेसिस प्रोवाइड हो, और वी वुड से दैट अलाइनिंग ऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी विद इट्स गोल, और सारी कंपनी की एक्टिविटीज को जो है ना अलाइन कर दिया जाए या एक साथ किया जाए कि उनके क्लियर बेसिस उनके लिए हो, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें. नाउ लीडरशिप इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, अगर हम लीडरशिप इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को अगर हम जज करते हैं, सो लीडरशिप फॉर क्वालिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट. सो लीडरशिप क्वालिटी के लिए जो है वो एक टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. नाउ सीनियर लीडरशिप मस्ट सेट डायरेक्शंस. सो सीनियर लीडरशिप को जो है डायरेक्शन सेट जरूर करने पड़ेंगे. क्रिएट अ कस्टमर ओरिएंटेशन, क्लियर क्वालिटी वैल्यूज. सो सीनियर लीडरशिप को डायरेक्शंस अपने इसलिए सेट करने पड़ते हैं अपने वर्किंग स्टाफ के लिए कि उससे उनका जो है वो कस्टमर ओरिएंटेशन क्रिएट हो, क्लियर क्वालिटी वैल्यूज उनमें आए, हाई एक्सपेक्टेशंस उनकी हों, वो एक्सपेक्टेशंस जो एड्रेस कर रही हैं नीड सारे स्टॉक होल्डर्स की, ठीक है, एंड बिल्ड देम इनटू द वे द कंपनी ऑपरेट्स. और इस तरीके से उनको बिल्ड इन कर देना चाहिए जिस तरीके से कंपनी ऑपरेट कर रही है कि उसी के सिस्टम में वो बिल्ड इन होने चाहिए. नाउ सीनियर लीडर्स need to commit to the development of the entire workforce and should encourage participation, learning, innovation and creativity throughout the organization. So senior leaders जो है उनको एक कमिटमेंट करनी है डेवलपमेंट की तरफ, ताकि वो जो है इंटायर वर्कफोर्स जो उनका है उसको वो इनकरेज कर सकें, पार्टिसिपेशन की तरफ लेके आ सकें, लर्निंग और इनोवेशन में भी लेके आए उनको, और उनके अंदर क्रिएटिविटी क्रिएट करें थ्रू आउट यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के में. Now, reinforcement of the values and expectations requires the substantial personal commitment and involvement of senior management. So, reinforcement जो है values की या उसकी expectations जो हैं वो require करती हैं कि पर्सनल कमिटमेंट जो है, सब्सटैंशियल पर्सनल कमिटमेंट हो और इन्वॉल्वमेंट हो सीनियर मैनेजमेंट की पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हर काम में, ठीक है. नाउ थ्रू देयर पर्सनल रोल्स इन प्लानिंग, reviewing company quality performance and recognizing employees for quality achievement, the senior leaders serve as role models, reinforcing the values and encouraging leadership throughout the organization. सो सीनियर लीडर्स जो है वो अपने पर्सनल रोल्स जो वो प्ले कर रहे होते हैं या जो रिव्यू कर रहे होते हैं वो कंपनी की क्वालिटी परफॉर्मेंस को, ठीक है, और फिर एम्प्लॉयज़ की अचीवमेंट्स को, क्वालिटी अचीवमेंट्स को जज कर रहे होते हैं या उनको रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, तो फिर सीनियर लीडर्स का जो रोल है वो एक रोल मॉडल की तरह बन जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑल द लोअर स्टाफ इज गोइंग टू बी फॉलोइंग वट एवर द सीनियर मैनेजमेंट इज डूइंग. फिर reinforcing the values को reinforce करना और encouraging leadership throughout the organization, और leadership को पूरे organization में जो है वो encourage करना. Now, if commitment to quality is not a priority, any initiative is doomed to failure. So अगर क्वालिटी की तरफ कमिटमेंट नहीं है और उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता या इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, ठीक है, तो कोई भी जो इनिशिएटिव है वो फेलियर की तरफ ही जाएगा. So lip service to quality improvement is the kiss of death. Many companies have a corporate quality council made up of top executives and managers, which set quality policy and reviews performance goals within the company.
सो लिप सर्विस ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जो है वो यानी कि सिर्फ हम जुबानी कलामी ही कहें कि जी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, तो ऑब्वियसली वो एक फेलियर की तरफ ही कंपनी को लेके जाएगा, यानी इट्स केस ऑफ डेथ, यानी मतलब कि वो डेड ही हो जाएगी कंपनी, लेकिन या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का सिस्टम डेड हो जाएगा. सो मैनी कंपनीज लेकिन ये कोशिश करते हैं कि दे हैव कॉर्पोरेट क्वालिटी काउंसिल बना लेते हैं वो, ठीक है, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स की बेस के ऊपर होती है, जो सेट करते हैं क्वालिटी पॉलिसी को और रिव्यू करते हैं परफॉर्मेंस गोल्स को एक कंपनी के अंदर. नाउ क्वालिटी शुड बी अ मेजर फैक्टर इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस प्रोसेसेस. सो क्वालिटी जो है वो उस जो है वो एक मेजर फैक्टर की तरह होना चाहिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस प्रोसेस में. सो व्हेन वी स्पीक अबाउट लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो हम जब बात करते हैं लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, तो उसमें मेनी ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड इन टोटल क्वालिटी एनवायरनमेंट मे बी कॉन्ट्रेरी टू लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस. तो बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं या ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो टोटल क्वालिटी एनवायरनमेंट एक क्रिएट करने के लिए उससे जो है ना वो बहुत मुख्तलिफ हों, जो ऑलरेडी पुराने प्रैक्टिस चल रहा है, यानी बहुत अरसे से जो चल रहा हो, यानी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से हट के है बिल्कुल. So top managers, ideally starting with the CEO, must be the organization's TQ leaders. So top managers जो हैं, स्पेशली खास तौर पे अगर आप कंपनी के सीईओ से स्टार्ट करते हैं तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के टोटल क्वालिटी लीडर्स बन जाते हैं. नाउ द सीईओ शुड बी द फोकल पॉइंट प्रोवाइडिंग ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स एंड विजन, encouragement and recognition. So CEO जो है वो ऐसा होना चाहिए जो एक फोकल पॉइंट है, जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स दे रहा है, या उसका विजन इतना क्लियर होना चाहिए, और इंकरेजमेंट और रिकग्निशन भी उसको देनी चाहिए अपने एम्प्लॉइज को. नाउ द लीडर मस्ट बी डिटरमिन्ड टू एस्टैब्लिश टोटल क्वालिटी इनिशिएटिव्स and committed to sustain total quality activities throughout daily actions in order to overcome employees' inevitable resistance to change. तो एक लीडर को ये डिटरमिन करना या कि उसने कौन से जो है टोटल क्वालिटी इनिशिएटिव्स लेने हैं, या उसकी कमिटमेंट होनी चाहिए ताकि वो टोटल क्वालिटी के एक्टिविटीज़ को सस्टेन कर सके या कंटिन्यू रख सके अपने डेली एक्शंस में, ठीक है, ताकि वो ओवरकम कर सके वो एम्प्लॉइज़ के इनएविटेबल रेजिस्टेंस टू चेंज, ताकि एम्प्लॉइज़ के अंदर जो चेंज होने के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है उसको वो दूर कर सके. Now, unfortunately, many organizations do not have the commitment and leadership of their top managers. So, ज़्यादातर unfortunately ये हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे organizations हैं जिनमें वो commitment नहीं है उनके leadership में या उनके top managers में. Now, this does not mean that these organizations cannot develop a quality focus. तो इसका ये मतलब तो नहीं होता कि वो quality focus नहीं develop कर सकते, लेकिन improved quality can be fostered through the strong leadership of middle managers and the involvement of the workforce. So, improved quality जो है वो लाई जा सकती है through strong leadership, यानी मिडिल मैनेजर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के थ्रू भी लाई जा सकती है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, एंड पूरे वर्कफोर्स की इन्वॉल्वमेंट पे भी बेस की जा सकती है. नाउ इन मेनी केसेस दिस इज वेयर क्वालिटी बिगिंस. बहुत सारे केसेस में जो है यहाँ से क्वालिटी शुरू होती है. तो इन द लॉन्ग रन हाउएवर एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सस्टेन क्वालिटी इनिशिएटिव्स विदाउट स्ट्रॉन्ग टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप. सो लॉन्ग रन में ऑब्वियसली लेट्स से कि हाउएवर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सस्टेन नहीं कर सकता क्वालिटी इनिशिएटिव्स को, ठीक है, विदाउट स्ट्रॉन्ग टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप जब तक उसके पास नहीं होगी. Now, achieving quality and market leadership requires a strong future orientation and a willingness to make long-term commitments to key stakeholders as customers, employees, suppliers, stockholders, or the public and the community. So, अगर हम देखते हैं कि हमने क्वालिटी अचीव करना है तो हम जज करते हैं मार्केट लीडरशिप की रिक्वायरमेंट को,
ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ओरिएंटेशन देखते हैं, और फिर विलिंगनेस देखते हैं हम, ताकि हम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स कर सकें की स्टेक होल्डर्स की तरफ, उनके कस्टमर्स की तरफ, प्लस जो एम्प्लॉइज़ हैं, सप्लायर्स हैं, स्टॉक होल्डर्स हैं, और जो पब्लिक है और जो कम्युनिटी है, उनकी तरफ भी एक विलिंगनेस हो, हमारे अंदर एक ख्वाहिश हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स करने की. नाउ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग of business should be the driver for quality excellence throughout the organization and needs to anticipate many changes. So strategic business planning अगर हम जज करते हैं तो वो एक पूरे क्वालिटी एक्सलेंस का एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उसकी तरफ लेके जाती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमें, और वो ज़रूरी है ताकि एंटिसिपेट कर सके कि हम बहुत सारी चेंजेस लेके आ सके, या हमें आइडिया हो कि उन चेंजेस को लाना किस तरह इम्पोर्टेंट है. नाउ सच एज कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, new business and partnering opportunities, let's say the global and electronic marketplaces or technological developments, new customer segments, evolving regulatory requirements, community, societal expectations and strategic changes by competitors. So अगर हम देखते हैं कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या है, ठीक है, न्यू बिजनेसेस और उनके पार्टनरिंग अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं, फिर ग्लोबल और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेसेस वो क्या है, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स कैसी हैं. सो हम कह सकते हैं कि न्यू कस्टमर सेगमेंट्स लाना, इवॉल्विंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, फिर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, यानी सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो वो सारा कुछ, और कम्युनिटी की, और स्ट्रेटेजिक चेंजेस जो हैं जो कंपटीशन वाले लेके आ रहे हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है. सो प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज एंड रिसोर्स एलोकेशंस नीड टू रिफ्लेक्ट दीज इन्फ्लुएंसेस. सो ऑब्वियसली स्ट्रेटजीज और प्लान्स ऐसे होने चाहिए जो इन रिसोर्सेज को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. So improvements do not happen overnight. Improvements overnight नहीं होती. The success of market penetration by Japanese manufacturers evolved over several decades. So success जो है एक market की, ठीक है, ये market penetration जो Japanese manufacturers ने की, ठीक है, वो काफ़ी अरसे तक, decades तक चलती रही. ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली ओवरनाइट नहीं आप लेके आ सकते. आपको प्लान्स बनाने हैं, आपको स्ट्रैटेजीज बनाने हैं, आपको अपने रिसोर्सेज देखने हैं कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज प्रोवाइडेड हैं, और फिर आप उन इन्फ्लुएंसेस पर रिफ्लेक्ट करते हैं. सो एक मार्केट की सक्सेस में जब जापानीज मैन्युफैक्चरर्स आए, ठीक है, उन्होंने अरसे तक मार्केट के ऊपर अपना वो काबू रखा, उसी प्लान को फॉलो करना है. नाउ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अगर हम जज करते हैं, सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वुड बी दैट ब्रिंगिंग टोटल क्वालिटी टू लाइफ एट एबीसी इंजीनियरिंग कंपनी. सो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम टोटल क्वालिटी को, दिस इज लाइक मे बी ए केस स्टडी दैट वी कैन से दैट वी आर गोइंग टू गो थ्रू, दैट टोटल क्वालिटी लेके आना किसी ABC engineering company है उसमें. Now ABC is a contract manufacturer of precision sheet metal and machine components for telecommunications, semiconductor and medical equipment industries. So अगर हम इस केस स्टडी के हिसाब से हम टोटल क्वालिटी को जज करते हैं ना, सो ABC जो है एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, जो शीट मेटल की प्रिसीजन और मशीन कंपोनेंट्स जो है टेलीकम्युनिकेशन के सेमीकंडक्टर्स में जो यूज़ होते हैं और मेडिकल इक्विपमेंट में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है उसकी इंडस्ट्री है. Now some of the ways it exemplifies the principles of total quality are described below. So कुछ ऐसी चीज़ें जिससे ABC कंपनी में, इंजीनियरिंग कंपनी में हम देख सकते हैं कि उसने टोटल क्वालिटी को कैसे मैनेज किया, या टोटल क्वालिटी को कैसे इम्प्लीमेंट किया अपने प्रोग्राम पे, वो भी हम स्टडी करते हैं आगे. पहली चीज़ कि उसने कस्टमर फोकस देखी. ना कस्टमर फोकस उसने कैसे देखा कि ABC made a strategic decision to carefully select customers that support its values, particularly a systematic approach to business and performance management, desire for long-term partnerships and global leadership. So ABC ने एक पहले strategic decision लिया, ठीक है, जो उसने केयरफुली सिलेक्ट किया अपने कस्टमर्स की बेस पे, और उसने उसको सपोर्ट किया वैल्यूज़ के साथ, और पर्टिकुलरली एक सिस्टमैटिक अप्रोच लेके आया वो बिजनेस एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की तरफ,
और एक डिज़ायर जो था उसका वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स की तरफ, ताकि वो ग्लोबल लीडरशिप में आ सके. Now, management and team leaders work with each customer to establish current requirements and future needs. So, management और team leaders जो हैं वो काम करते हैं एक दूसरे के साथ या customers के साथ मिलके, ताकि वो current requirements जो है या future needs जो हैं customers की वो जान सकें. And each customer is assigned a 3-person customer service team that is on call 24 hours a day for day-to-day production issues. So, ABC ने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया, ठीक है, फिर अपने केयरफुली अपने कस्टमर्स को सिलेक्ट किया जो उसकी वैल्यूज को सपोर्ट करते हैं, फिर एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपने बिजनेस की तरफ उन्होंने या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की तरफ, जिसमें उनका लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स एंड ग्लोबल लीडरशिप की तरफ उनकी एक ख्वाहिश थी, एक डिज़ायर थी कि हम वहाँ तक पहुँचे. तो उन्होंने फिर एक मैनेजमेंट एंड लीडर टीम लीडर्स जो है वो असाइन किए, जो हर कस्टमर के साथ जो है उनके मुताबिक उनकी करंट रिक्वायरमेंट्स और उनके फ्यूचर नीड्स के हिसाब से उनके साथ काम करने लग गए. और हर एक कस्टमर को 3 ऐसे कस्टमर सर्विसेज की टीम में से 3 ऐसे लोग दे दिए गए, ठीक है, 3 पर्सन पे बना दी एक टीम, जिसमें जो उनको 24 आवर्स सर्विसेज डे टू डे जो है वो प्रोडक्शन इश्यूज से रिलेटेड उनसे इन टच रहते हैं. दूसरा आ जाता है, उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या किया कि प्रोसेस ओरिएंटेशन. अब प्रोसेस ओरिएंटेशन वो कैसे लेके आए कि प्रोसेसेस सच एज प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, scheduling, production setup, fabrication, assembly and delivery have process owners responsible for maintaining the process to customer requirements. So processes ये ABC कंपनी ने जो है ना कैसे वो किया. अब ये ABC हमने इंजीनियरिंग कंपनी इसलिए लिए कि ये एक तरह से हमने उनकी केस स्टडी लेके आपको एक्सप्लेन करने के तरीका कि उन्होंने टोटल क्वालिटी को कैसे इम्प्लीमेंट किया और कैसे प्रोसेस में लेके आए. सो प्रोसेस ओरिएंटेशन में प्रोसेसेस जो हैं जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में, स्केड्यूलिंग में, ये प्रोडक्शन सेटअप में इस्तेमाल होते हैं, फैब्रिकेशन में, असेंबली एंड डिलीवरी जो है हैव प्रोसेस ओनर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रोसेस टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, और ऐसे प्रोसेसेस ताकि वो मेंटेन कर सकें कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक. So a quality assurance team member works with manufacturing teams to create process documentation. तो एक क्वालिटी एश्योरेंस का टीम मेंबर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग टीम्स के साथ काम करता है ताकि वो प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन कर सके, यानी जिस प्रोसेसेस में से चीज़ें गुजर रही हैं उनको वो डॉक्यूमेंट कर सके. Now the third thing that they did, that the ABC company did was continuous improvement and learning का कैसे वो लेके आए अब अपने कंपनी में. Teams used a structured approach to evaluate and improve their processes, documenting them. तो ऐसे टीम्स जो है उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बनाया जिससे वो एवेल्युएट कर सकते हैं या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने प्रोसेसेस में और उनको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, यानी उनको दे कैन राइट देम डाउन एंड प्रेजेंटिंग अ स्टेटस रिपोर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स टू सीनियर लीडर्स एंड द एबीसी स्टीयरिंग कमेटी. सो एबीसी की स्टीयरिंग कमेटी और जो उनके सीनियर लीडर्स हैं उनको वो एक कंटिन्यूस तरीके से, यानी वो प्रोसेसेस की इम्प्रूवमेंट और एवेल्युएशन की रिपोर्ट उनको जो है ना उन्होंने तैयार करके देनी होती है. नाउ टीम्स बेंचमार्क कॉम्पिटिटर्स, बेस्ट प्रैक्टिस कंपनीज एंड कस्टमर्स टू लर्न फ्रॉम अदर्स. सो वो जो टीम्स हैं वो दूसरे अपने कंपटीशन में जो कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको वो बेंचमार्क करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपनीज की वो जज करते हैं और कस्टमर्स जो है वो एक दूसरे से जो लर्न कर रहे हैं उसको जज करते हैं. Now empowerment and teamwork, अगर हम empowerment and teamwork जज करें, so production and delivery processes are designed around cell manufacturing. So production और delivery process जो है वो cell manufacturing के इर्द गिर्द जो है डिजाइन किया जाता है. Now teams are responsible for knowing their customers' requirements and producing according to those requirements. So teams जो है वो responsible किस चीज़ की हो जाती हैं कि वो अपने customers की requirements मालूम हो उनको और ऐसी प्रोड्यूस कर सके अकॉर्डिंग टू दोज रिक्वायरमेंट्स और उस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपनी जो है वो कस्टमर की चीज़ें या अपनी प्रोडक्शन जो है वो मैनेज कर सके. नाउ टीम्स आर एम्पावर्ड टू चेंज टारगेट्स recommended during strategic planning if they believe it will help them achieve higher performance.
सो टीम्स जो है दे आर एम्पावर्ड इन उनको ऐसे टारगेट्स चेंज करने की उनके पास पावर होती है, ठीक है, या ऐसे उनको रेकमेंड किया करते हैं वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को, इफ दे बिलीव दैट वो उनको बेहतर परफॉर्मेंस अचीव करने में हेल्प आउट कर सकती है, एज वेल एज टू स्केड्यूल वर्क, मैनेज इन्वेंट्री एंड डिजाइन द लेआउट ऑफ देयर वर्क एरियाज। और फिर वो अपने वर्क को स्केड्यूल भी कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं और अपना जिस वर्क एरिया है उसको डिजाइन कर सकते हैं। सो टीम एनालाइजेस, फिर वो आ जाता है मैनेजमेंट बाय फैक्ट का इशू वो लेके आ जाते हैं। नाउ टीम एनालाइजेस डिफेक्ट डेटा, ठीक है, वो डिफेक्ट डेटा को एनालाइज करते हैं, कस्टमर रिपोर्टेड प्रॉब्लम्स, कस्टमर्स की जो कंप्लेंट्स हैं उनको वो देखते हैं, एंड कंट्रोल चार्टर्स जनरेटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट। और ऐसे कंट्रोल चार्टर्स जो हैं जो जनरेट किए जाते हैं एक प्रोडक्शन के दौरान या प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो है जो इम्प्रूवमेंट लेके आ सकती हैं उनको एनालाइज करते हैं। नाउ एवरी बिजनेस गोल and project has defined methods for measurement, and senior leaders meet weekly to review company performance and ensure alignment with direction and plans. So ABC engineering company में जो है हर कंपनी बिजनेस कंपनी की तरह उनके भी गोल्स हैं और प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके मेथड ऑफ मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं, और जो सीनियर लीडर्स हैं वो वीकली तौर पे मिलते हैं ताकि वो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकें और ये जज कर सके कि अलाइनमेंट और सही तरीके से डायरेक्शंस और सही प्लान्स के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। So leadership and strategic planning, if we look at that, then senior executive leaders, the SELs, and leadership committee, LC, set the strategic direction of a company and communicate and reinforce values and expectations through performance reviews. So senior executive leaders अगर हम जज करते हैं या leadership committee हम देखते हैं तो वो एक strategic direction में कंपनी को लेके जा रहे होते हैं और वो communicate करते हैं और reinforce करते हैं values को, expectations को अपने performance reviews के through. So participation in improvement और strategic projects, और improvement की में participation देखते हैं और strategic projects को judge करते हैं, regular interactions with customers and team members and recognition of team member achievement, और उनकी रेगुलर इंटरेक्शंस होते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ, और अपने टीम मेंबर्स को रिकग्नाइज करते हैं उनकी अचीवमेंट्स को। Now all this has contributed to an annual average increase in sales growth of 35% from 1995 to 2000. So ये सारा कुछ contribute अगर हम इसको देखते हैं तो वो कर रहा है एक annual average जो है जो increase कर रही है sales growth को, ठीक है, जो 35% बढ़ गया है, अब growth आ गई है 95 से लेके 2000 की years तक, and high levels of customer and employee satisfaction and quality and operational performance, और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन हाई लेवल की, ठीक है, और क्वालिटी एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर होने के लिए। सो फिर when we look at it, the TQM and strategic focus अगर हम जज करें तो the nature of TQ total quality differs from common management practices in many respects. Now number one, common management से वो बहुत different है total quality के strategies. Number one is strategic planning and management. So in addition, in traditional management, financial and marketing issues such as profitability, return on investments, and market share drive strategic planning. So strategic planning and management अगर हम जज करते हैं तो एक traditional management में फाइनेंशियल चाहे वो मार्केटिंग इश्यूज है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी के जिसमें प्रॉफिट्स ले रहे हैं या रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट शेयर ड्राइव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सो वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तरफ लेके जाती हैं वो चीज़ें। सो क्वालिटी प्लानिंग एक्टिविटीज़ आर डेलीगेटेड टू द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, और क्वालिटी प्लानिंग एक्टिविटीज़ जो है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ डेलीगेट कर दी जाती हैं। सो लॉन्ग टर्म क्वालिटी इनिशिएटिव्स जो हैं
are viewed as being costly and non-contributing to the ultimate performance measure profit. So long term quality initiatives लिए जाते हैं, ठीक है, ऐसे जो व्यू किए जाते हैं जिनको कॉस्टली नहीं समझा जाता, ठीक है, एंड नॉट कंट्रीब्यूटिंग, जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते उस अल्टीमेट परफॉर्मेंस मेजर जो है प्रॉफिट का उसकी तरफ. और क्वालिटी प्लानिंग जो है एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग आर इनडिस्टिंग्विशेबल इन टोटल क्वालिटी. और क्वालिटी प्लानिंग जो है और स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग जो है वो टोटल क्वालिटी में पहचानी नहीं जा सकती, यानी उसको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता. सो क्वालिटी गोल्स आर द cornerstone of the business plan. So quality goals ऐसे हैं जो एक business plan के लिए उसके जो है ना यानी cornerstone की तरह ऐड करते हैं. So measures such as customer satisfaction, defect rates and process cycle times receive as much attention in the strategic plan as financial and marketing objectives. So quality goals जो है अगर हम जज करते हैं तो वो एक cornerstone है एक business plan के लिए, और वो measure कर रहा है कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन को, उनके डिफेक्ट रेट्स को, एक पूरे प्रोसेस साइकिल का जो टाइम है जो सबसे ज़्यादा अटेंशन दी जाती है. सो रिसीव्स एज मच अटेंशन, उस जितना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को अटेंशन दी जाती है ना फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स में, उतनी ही इन सारी चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है. नंबर 2 इज चेंजिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड सप्लायर. फिर कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप चेंज करना अपने suppliers या customers के साथ. So in traditional management, quality is defined as adherence to internal specifications and standards. So अगर हम traditional management में judge करें तो quality को जो है ना हम describe कर सकते हैं कि वो internal specifications और standards के मुताबिक हम उसको describe करते हैं. Now quality is defined as adherence to internal specifications and standards. तो क्वालिटी को हम डिफाइन कह सकते हैं कि इंटरनल स्पेसिफिकेशंस और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसको डिफाइन किया जा सकता है. एंड क्वालिटी इज मेजर्ड ओनली बाय द एब्सेंस ऑफ डिफेक्ट्स. और क्वालिटी जो है उसको हम सिर्फ डिफेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर कर सकते हैं. सो इंस्पेक्शन ऑफ पीपल्स वर्क बाय अदर्स इज नेसेसरी टू कंट्रोल डिफेक्ट्स. और लोगों का काम जो है हम जज कर सकते हैं किस तरह ताकि वो डिफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकें. सो इन टोटल क्वालिटी, quality is defined as products and services beyond the present needs and expectations of customers. So टोटल क्वालिटी में अगर हम जज करें तो हम कह सकते हैं कि क्वालिटी जो है वो डिफाइन किया जाता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, जिसमें जो है वो प्रेजेंट नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस जो है कस्टमर्स की वो उसको पिन पॉइंट किया जाता है. सो इनोवेशन जो है इज रिक्वायर्ड टू मीट एंड एक्सीड कस्टमर्स नीड्स. सो इनोवेशन लेके आना वो बहुत ज़रूरी है ताकि कस्टमर्स की नीड्स को मीट किया जा सके. Traditional management places customers outside of the enterprise and within the domain of marketing and sales. So traditional management जो है वो customers को enterprise के बाहर place करती है और उसमें marketing and sales की domain में लेके आती है. So total quality views everyone inside the enterprise as a customer of an internal or external supplier and a supplier of an external or internal customer. So total quality जो है उसको हम view करते हैं एक enterprise में as an internal customer या external भी, और एक internal और एक्सटर्नल कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो पूरे उनको जज करना कि वो किस तरीके से उनकी क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं. नाउ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स कैन बी यूज्ड टू असेस internal customer needs and to communicate internal supplier capabilities. और marketing concepts जो हैं या उनके जो tools हैं उनको use किया जा सकता है internal customers को assess करने के लिए उनकी needs and communicate internal supplier capabilities और उनकी capabilities को judge करने के लिए. So
we would say that marketing concepts जो है वो बड़े important होते हैं ताकि और tools important होते हैं ताकि हम customer की needs को जान सके, ठीक है, और उनको फिर हम अपने internal suppliers जो है जो बना रहे हैं capabilities है उनकी improve करने के लिए हम उन तक उसको communicate कर सके कि हमारे external customer की needs और internal customer की needs क्या हैं. So today, students, that's enough for today. We'll continue with the strategic focus of total quality in our next lecture. Thank you so much. Good day.